नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी के 2023 के। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करेंगे और 50 तक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो पहले 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं, जिसमें कि हमें मैसेज क्रैक्स करना होता है और क्या इंटेंट है पैसेज का वो आपने बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैसेज शुरू करते हैं। इन इंडिया, वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर of poor performance of the economy under condition of rising schools and college enrollment. It paints an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for the people with the secondary or higher education, and rising education levels inflate unemployment challenges. तो unemployment के बारे में आपका पूरा का पूरा पैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो what is the following, which one of the following statement likely reflect as to what the author passes intend to say? The enrollment in school college is high but there is no quality education। तो quality education की बात हमने नहीं की है। तीसरा स्टेटमेंट है, देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। तो इसके बारे में नहीं बात की है, लेबर इंटेंसिव की बात ही नहीं की हमने। चौथा स्टेटमेंट था, द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात भी हमने नहीं की है। बात की हमने, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। तो यही इस मैसेज में, इस पैसेज का मैसेज इंटेंड हो रहा है। ठीक है जी। चलिए अब दूसरा पैसेज पढ़ते हैं कि दूसरा पैसेज किस बेस के ऊपर है। कि साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल. It is not possible to run a course or right when the goal itself has not been rightly placed. What science needs is philosophy, the analysis of scientific method, and the coordination of scientific purposes and results. Without this, any science must be superficial. Government suffers precisely like science for lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship with statesmanship bears to politics. Movement guided by the total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism when divorced from the actual needs of man and life, so the pursuit of politics becomes a destructive bedlam when divorced from science and philosophy. तो साइंस एंड फिलोसफी की बात आपके सामने की गई थी, उसके रिलेटेड ही यह आपको पूरा वैसे देखने को मिलेगा। रैशनल, लॉजिकल एंड आपका जो कोई भी प्रैक्टिकल मैसेज इससे क्या कन्वे हो रहा है वो बात की गई है कि मॉडर्न स्टेटसमैन statesman needs to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them to a better perspective of their roles and responsibility and goals. नहीं, इसका आंसर है आंसर बी. It is not desirable to have government managed by empirical statesmen unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom. तो यही इसका क्या है, आंसर है। आप एक बार फिर से पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद इसका जो मैसेज आपके थ्रू क्लक्स हो रहा है आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। पैसेज नंबर 3 देखते हैं। द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट्स इज नॉट टू डोमिनेट मैन नॉर टू रिस्ट्रेन them by fear, rather it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injuries to himself and his neighbor. The end of the state, I repeat, is not to make rational beings into brute beasts and machines. It is to enable their bodies and their mind to function safely. It is to lead men to live by and to exercise a free reason that they may not waste their strength in hatred, anger, and guile. Not
एक्ट अनफेयरली टुवर्ड वन अनदर। ठीक है जी। तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज की किस बात के बारे में या अल्टीमेट गोल क्या है स्टेट का, तो लिबर्टी अल्टीमेट गोल है कि मतलब फाउंडेशन नहीं है, उसी के बारे में पूरी इसमें बात की गई थी कि उसके पास सिक्योरिटी हो। तो मेनली यही है कि एक क्या होना चाहिए आपके पास, लिबर्टी, जो आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए जब पैसेज वाले क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं, अब हम करेंगे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 2⁴192 इज डिवाइडेड बाय 6। देखो जब आप ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप देखिए कि 2⁴1 किस बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका रिमाइंडर कितने बचेगा, 2 ही आपका शेषफल बचेगा। वैसे 2⁴2 के केस में क्या होगा, 4 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, आपका रिमाइंडर कितना बढ़ेगा, बचेगा 4 ही रिमाइंडर बच जाएगा। उसी प्रकार 2⁴3 जब होगा तब आप होता है 8, तब रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पर 2 ही बचता है। और 2⁴4 करेंगे तो ये 16 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपका रिमाइंडर फिर से 4 बच जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि जब भी पावर 2 की ऑड आ रही है, कि 2⁴1 आ रही है, 2⁴3 आ रही है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 से डिवाइड करने के ऊपर 2 बच रहा है। लेकिन जब भी पावर इवन आ रही है, जैसे 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, कभी भी आएगी, तो उस केस में रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, इवन है। ठीक है, जब 2 की पावर इवन आपको देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है कि 6 से डिवाइड करने के ऊपर यह 4 ही आपका रिमाइंडर बचाएगा। तो आंसर विल बी डी, 4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर सीक्वेंस, रीजनिंग का है। ए बी सी डैश डैश ए बी सी डैश डी ए बी बी सी डी। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ए बी बी सी डी। ठीक है, लास्ट में ए बी सी डी है। ठीक है, तो मतलब लास्ट में ए बी बी सी डी है, मतलब यहाँ डबल बी है, तो या तो उसके बाद डबल सी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, तो डबल बी से पहले डबल ए जरूर हो सकता है। लास्ट में ए कहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन है, या तो सी या डी में से एक होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ए बी बी है तो यहाँ ए बी सी सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सी सी होना चाहिए, तो मतलब तीसरे नंबर पे सी होना चाहिए, तीसरे नंबर पे सी यहाँ पे भी है। अब देखना पड़ेगा हमारे पास दूसरे नंबर पे अगर यहाँ ए बी सी है तो यहाँ डी डी होना चाहिए, तो पहले 2 डी डी होने चाहिए, तो आंसर विल बी डी आपका हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर। ठीक है जी, ए बी और सी डी आपके पास 2 डिजिट नंबर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी डी रिजल्ट्स इन 3 डिजिट नंबर डी ई एफ, एडिंग डी ई एफ टू अनदर नंबर 3 डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्टिंग इट इन 975। फर्दर ए बी सी डी डिस्टिंक्ट इंटीजर है, डिजिट्स है, ई 0 है, एफ 8 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से पूछा गया है। देखो पहले इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा मजेदार तरीका आपको बताता हूँ कैसे करना है। ए बी इंटू सी डी आपके पास कितना दिया हुआ है कि डी ई एफ के बराबर है। ठीक है, डी एफ के बराबर दिया हुआ है। अब डी ई एफ को आप प्लस कर रहे हैं जी एच आई से, तो आपके पास कितना बन रहा है, 975 बन रहा है। ठीक है जी, अब आप समझ चुके हैं कि क्या हमने क्या करना है। ठीक है जी, क्या बना है कि जब हमने डी ई एफ को जी एच आई के साथ जमा किया तो हमारे पास क्या बना, 975 बना। अब आपको देख सकते हैं कि ई 0 है, एफ 8 है, ई की जगह कितना है, 0 है, एफ की जगह कितना है, 8 है। ठीक है जी, अगर यह 8 है तो ये क्या टर्म क्या बन गई फिर, तो ये टर्म क्या बन गई अब, डी ई एफ। एफ का पता है, डी हमारे को पता नहीं है, तो डी 0 8 प्लस, ठीक है, अब कितना आएगा, जी एच आई इज इक्वल टू 9 7 एंड 5। अब देख सकते हो आप यहाँ लास्ट डिजिट कितनी है, 8, यहाँ है आई, यहाँ है 5, तो 5 बनाने के लिए आई की मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये 7 होनी चाहिए आई की वैल्यू। अगर ये 7 होनी तो 8 7 15 होगा, 5 आ जाएगा। 0 है तो ये 7 बनाने के लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, 1 तो बन रहा है लेकिन तो इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, तो एच की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 6 है, 6 और 1 के 7 हो जाएगा। इसकी 9 बनाने के लिए डी और जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब आप देखना है कि अगर इसकी वैल्यू हमने क्या बनानी है, अब देखो 3 डिजिट नंबर है, 0 तो ये हो नहीं सकता, 0 + 9 तो हो नहीं सकता, कि अगर इसको 0 बना दें तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा इसका। ठीक है जी, अब आपको पता लग गया कि टर्म हमारी क्या बन गई है, टर्म क्या बन गई है। अब आप देख सकते हैं कि टर्म हमारी जो बन गई है वो बन गई है D08 जमा
जी पता नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 7 है, इज इक्वल टू 975 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है जी। तो अब डी प्लस जी की वैल्यू कितनी हो सकती है? डी प्लस जी की वैल्यू 9 होनी चाहिए। डी प्लस जी किस बराबर होना चाहिए? आपके पास 9 के बराबर होना चाहिए। 0 + 9 हम ले नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते? 0 + 9, 0 + 9 इसलिए नहीं ले सकते कि फिर ये 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, मतलब 2 डिजिट नंबर बन जाएगा डी ई एफ वाला। तो ठीक है, तो ये तो होने से रहा। दूसरा क्या था हमारे पास कि अब हमारे पास या तो हम डिस्टिंक्ट इंटीजर भी होना चाहिए। तो 6 हमने ले लिया है। ठीक है, हमारे पास 6 भी ले लिया गया है, हमारे पास 0 भी ले लिया गया है, हमारे पास 8 भी ले लिया गया है, हमारे पास 7 भी ले लिया गया है। तो 4 डिजिट हमने ले ली है। और कौन सी डिजिट ली हमने बताओ? देखो यार क्या करते हो, डी ई एफ था ना, तो D08 था प्लस GHI था। आई की वैल्यू तो पता लग गया आपके पास 7 थी। ठीक है, जिस एच की वैल्यू लगी आपको पता 6 थी। तो ये 4 वैल्यू तो हमको पता लग गई कि 6, 7, 0, 8 ये तो ले लिए गए हैं। ठीक है, 6, 7, 0 और 8 ले लिए गए हैं। अब क्या बचा? 1 + 8 हो नहीं सकता क्योंकि 8 भी ले लिया गया है। अब 2 + 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 भी ले लिया गया है। 3 + 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 भी ले लिया गया है, 6 भी ले लिया गया है। अब क्या बच गया? 4 + 5, ये 2 ही नहीं लिए गए हैं। अब या तो D5 हो या फिर G5 हो, दो में से एक ही कंडीशन होती है। चलो पहले हम D को 5 लेके देखते हैं, 4 लेके देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगी? 408 जमा 5, 6, 7 इज इक्वल टू 975। तो अब ए बी इंटू सी डी किस बराबर था हमारे पास? ए बी इंटू सी डी किस बराबर था? ए बी इंटू सी डी आपके पास था डी ई एफ के बराबर। ठीक है, अब सी डी की वैल्यू कितनी ली आपने? 4 ली। ठीक है, तो 4 ली अगर आपने, यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी तो 2 चौके 8 होना चाहिए ना, तभी तो मतलब कटेगा है कि अगर इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है यार, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू डी ई एफ है कि नहीं है? ठीक है, तो डी ई एफ मतलब ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू आपके पास 408 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ये 8 है वैल्यू, तो ए बी सी की वैल्यू बची हुई वैल्यू होएगी ना, कि जो अब ने ली है। हमने 4 ले लिया है, हमने 0 ले लिया, हमने 8 ले लिया, हमने 6 ले लिया है, हमने 5 ले लिया, हमने 7 ले लिया है। किन टर्म ने 0, तो क्या बच गया? 1, 2, 3 ही तो बच गया। ये तो लेना बच गया, बाकी बच गया। और क्या बच गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ले हमने। तो 1, 2, 3 तो 3 और 2 5 और 1 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? आपको समझ आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या किया हमने, एक बार फिर से बता देता हूँ कि डी ई एफ प्लस GHI आपके पास दिया था 975। ठीक है जी, ई की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, 0 और 8 है। तो यहाँ से आपके 7 और 6 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें दोनों में से एक कंडीशन होती है, 4 या 5 ही वैल्यू हो सकती है। कोई भी एक ले लो, उसको 5 ले लो, उसको 4 ले लो। इसको आपने 4 ले ली तो बची हुई टर्म कितनी बच गई? अब डिस्टिंक्ट डिजिट है ना सारी, तो बची कितनी? 1, 2 और 3। वो कौन हो सकती है? वो ABC ही हो सकती है। और आगे पीछे जैसे मर्जी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 इसका सम हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट विद द 5 कैंडिडेट PQRST, 2 स्टेटमेंट ऑफ द ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बताओ कि इसमें से कौन सी कंक्लूजन निकलता है कि 1 ऑफ P एंड Q वॉज सिलेक्टेड फॉर जॉब। या तो मतलब P होगा या फिर Q होगा, दोनों में से एक ही सिलेक्ट किया जा सकता है। एटलीस्ट 1 ऑफ R एंड S वॉज सिलेक्टेड फॉर जॉब। R एंड S में से एक सेलेक्टेड किया गया, पर लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब R एंड S दोनों ही सिलेक्टेड नहीं होंगे, ना तो R ना ही S। कि एटलीस्ट 1 ऑफ R एंड S वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये फॉल्स स्टेटमेंट अगर है तो R एंड S दोनों ही क्या बोलते हैं, जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, एट मोस्ट 2 ऑफ R S T वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। एट मोस्ट ज़्यादा 2 ऑफ R S T में से ज़्यादा 2। अब R S तो हो ही सकते, एक बचा T, तो एट मोस्ट है तो मतलब T तो हो ही सकता है। तो या तो P हो सकता है अकेला जॉब के लिए, या फिर P और T हो सकता है, या फिर Q हो सकता है, या फिर Q और T हो सकता है। यही ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं कि जो लोग जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं, R S तो जॉब में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया।
ठीक है, कि 4 कैसे सेलेक्ट होंगे जॉब के लिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम नहीं, पहले P या फिर Q या फिर Q या फिर T या फिर PT, 4 ऐसे नहीं है, P या Q में से होगा एक, या फिर QT होगा या PT होगा, मतलब एटलीस्ट 2 ही है, तो पहले स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, S वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो नीदर 1 नॉर 2, क्यों, क्योंकि S तो वैसे ही सिलेक्ट नहीं है ना, फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर आ गया, तो नीदर 1 नॉर 2 विल बी योर आंसर। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। लेट PQRST was a 5 statement such that if P is true then both Q and S are true। अगर P true है तो Q and S भी true होगा, अगर P है तो कंडीशन ये है। इफ R and S are true, अब R और S अगर true हो जाते हैं तो T false हो जाएगा। ठीक है, अगर R S तो T false हो जाएगा। स्टेटमेंट देखते हैं, इफ T is true then at least one of P and R must be false। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर T ट्रू है तो R भी फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि R एंड S अगर ट्रू हो जाता है, और P भी आपका फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि P अगर ट्रू हुआ तो Q और S हो जाएंगे ट्रू, अगर P ट्रू हो गया तो Q और S ट्रू हो जाएंगे, अगर S ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है, आप देखते हैं ना कि S अगर ट्रू है और R अगर ट्रू है तो T फॉल्स हो जाएगा, तो अगर T ट्रू करना है तो R और S दोनों फॉल्स होने चाहिए, S फॉल्स करने के लिए P फॉल्स होना चाहिए और R तो फॉल्स होना ही चाहिए, तो आंसर एक पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इफ़ Q इज़ ट्रू P इज़ ट्रू, तो ऐसा तो नहीं है, P इज़ ट्रू Q इज़ ट्रू है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर विल बी 1 ओनली। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने क्या बोलता है कि क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 753 सेंटीमीटर, ठीक है, इज पेंटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ द अपोजिट फेसेस ऑफ द डायमेंशन 7553 एंड 73 रिस्पेक्टिवली। Then the cuboid is cut and separated into various cube of each side of length 1 centimeter. What is the correct statement? ठीक कौन सी है कि there are exactly 15 small cube with no paint on any face। ठीक है, अब देखो आप कि अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशंस किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 7 5 के 2 फेस होंगे, इसके भी 2 फेस होंगे और इसके भी 2 फेस जो हैं आपके पेंट किए गए हैं। ठीक है, पेंट इसके रेड हैं, इसके ग्रीन मान लेते हैं और इसके आपके ब्लू मान लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 ही फेस होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, अब 6 फेस होते हैं, तो अगर 3 कलर हैं तो अपोजिट फेसेस के अंदर किए जा रहे हैं, तो मतलब 2 7 5 वाले 2 इसके और 2 इसके किए जा रहे हैं। अगर उनको हम निकाल लें, मतलब 7 - 2 कर लें, ठीक है, गुणा कर लेते हैं या जमा कर लेते हैं, 5 - 2, फिर क्या गुणा कर लेते हैं आपका 3 - 2, तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरनल क्यूब्स निकल गए हैं आपके। ठीक है, तो इंटरनल क्यूब्स के ऊपर ही पेंट नहीं किया गया होगा। ठीक है कि नहीं है जी, तो इससे मतलब क्या है, 7 में से 2 गए 5 हो जाएंगे, 5 में से 2 गए 5 में से 2 गए कितने हो जाते 3 हो जाते हैं। ठीक है, और आपका 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा, मतलब कि जब आप इसका इंटरनल क्यूब्स निकालेंगे तो आप 5 दिए 15 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 15 ही क्यूब इंटरनल क्यूब्स होंगे जिनके ऊपर नो पेंट ऑन एनी फेस होगा। ठीक है जी, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता करना पड़ता है कौन कौन सी साइड कितने कितने पेंट की गई है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। देखो, वन पेंटेड विद ब्लू अदर विद ग्रीन, ठीक है, तो पहला बात तो रेड है, तो ग्रीन और ब्लू के लिए 2 हो जाएंगे, मतलब जिसका 3 सेंटीमीटर वाला एज होगा वही तो आपका होगा, तो 2 इसके हैं 2 इसके हैं, तो ये 4 ही तो हैं, 6 तो नहीं ना है। ठीक है जी, तो 2 और 2 4, 4 ही फेसेस है ना कि 6 हैं, तो आंसर आएगा 1 ओनली। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 49 हमने किया है, सॉरी 48 नहीं था, 48 तो हमने पहले कर लिया था। Let's move to the next question, that is question number 50, last question of this video. The letter of the word incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order. How many position of letter will remain unchanged? अब आप क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात इसमें देखो कि इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स करना है, मतलब कि जैसे हम ABCD लिखते हैं सीधी, उसको हम उल्टा लिखना पड़ेगा हमारे पास DCBA। तो वैसे ही इसमें आप ढूंढिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है जी, जैसे अंक नहीं, सॉरी अक्षर, जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, S दिख रहा है,
कि टी दिख रहा है, टी दिख रहा है तो टी से शुरुआत करिए, उस एक को उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तब आप इसको लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आई, दो आई जो आपके पास आई टी आई के पास देखने को मिलेंगे, वो दोनों आई जो है वो अनचेंज्ड रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है लिखना, तो इसलिए आप इसको करके देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो टू फेसेस आपके जो है टू आई जो है टू अल्फ़ाबेट आपके अनचेंज्ड अपनी पोजीशन को करते हुए देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।